पाकिस्तान को मैं जो भूला नहीं इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माय लाइफ. आई शुड हैव गिवन इट अप. हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है वी डोंट हैव अ डेमोक्रेटिक कल्चर. When Pakistan came into being, we had no economists. मेरे तो जितने PhD देखे हैं मेरे प्रोफेसर वो तो बिल्कुल जाहिल थे. हम इकोनॉमिस्ट जरूर बने हुए हैं, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, but we are not conversant with the latest developments in the literature. वहाँ जाते साथ समझ आ गई कि जो यहाँ हमारे उस्तादों ने पढ़ाया था, खासतौर पर गवर्नमेंट कॉलेज में, बकवास थी. तो मैं तो कहता हूँ ना, मैं शुरू यहाँ से करता हूँ, जवानी हमारी जाया करती. We are in the wrong. हमने बंगालियों के साथ जाती की. हर किसी के दिल में गरीब की दर्द थी. बहुत दर्द थी गरीब की. हमारी बहुत दर्द है गरीब की. हर किसी की दर्द गरीब की थी. वो गरीब की दर्द हम डॉलर्स के बेच के पैसे बनाते थे. That's all. ये इकोनॉमिक प्रोफेशन थ्रू आउट रही है. Remember the big headline is we are so devoid of mentoring. कोई एडवाइस नहीं कर सकता. It only took some goras to advise me. Assalamu alaikum everyone. So today we are here with Dr. Nadeemul Haq. And I'm fortunate to have this opportunity, and I've been looking forward to this opportunity with only one goal in mind, which is to understand the making of the Nadeemul Haq. Assalamu alaikum. Thank you. Walaikum salam. So Nadeemul Haq Sahab, as many of you already know, so he doesn't need an introduction, but he has been in many interesting places. So starting his economics career at the time when there was a lot of discussion between capitalism and communism or socialism back in the 60s, 70s, going forward to Chicago, studying with the best of the best over there and being exposed to the Keynesian and the classical discussions of the time, which were very much happening in the US between Friedman and Tobin and other people across the board. Thereafter, going to the IMF, is working on a very more let's say standard macro kind of framework, but there was a rational expectation, the revolution happening at the time as well. And he was one of the first few people who actually worked on these kind of models and developed these models to understand the countries while he was in the IMF. But what's more interesting is that over the time period while working for the IMF, he actually ended up having a bit of his own crisis in terms of how the economies should be, what are the institutions which prevent growth, what are the institutions that you need for growth, and that led to his own academic journey as well, writing many papers while at the IMF and even after he finished IMF, and then obviously we all know how he has been contributing to the policy discussion and the academic discussion, both as the deputy commissioner at the Planning Commission and also as the VP for FIDE, both before and also in the more recent years. So the aim of this podcast is really to understand what influenced Nadeemul Haq, why he thinks what he thinks, and how does he see things going forward. So ये सब कुछ हमने आज understand करना है, और इसमें हमने बिल्कुल sequentially we'll go along very sequentially. पहले इनसे ये पूछें in this process के उस टाइम जब आप when you were starting your career as an economist, as a student, उस टाइम पाकिस्तान में क्या डिबेट्स हो रही थी, क्या आइडियाज थे जो डिस्कस हो रहे थे, उसमें इनका व्यू पॉइंट क्या था, did he have a strong व्यू पॉइंट या नहीं उस टाइम, whether he was still kind of flirting with ideas and trying to figure out what's the right way forward. तो इससे शुरू करते हैं कि लैंडस्केप क्या थी जब आप स्टूडेंट थे, और उस लैंडस्केप ने कहते why did you even decide to study economics at the time? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है जी. पहली चीज तो ये है कि स्कूलिंग के दौरान हमें कोई पता नहीं था हम क्या कर रहे हैं. एंड nobody taught us, there was no career planning, no career advice, nothing. We knew absolutely nothing. We just went through school blindly. एक ही चीज सामने नजर आती थी, कुछ लोग डॉक्टर बन जाते थे, कुछ लोग सिविल सर्वेंट चल जाते थे, कुछ लोग इंजीनियर बन जाते थे. तो मुझे एडवाइस किया कि सिविल सर्विस, मैं पढ़ता गया सिविल सर्विस की तरफ. अगर मैं बचपन में सोचता मेरा शौक मैथ्स और फिजिक्स वगैरह था, बट मैं चला गया लिटरेचर वगैरह में कि सिविल सर्वेंट बनना है. वहां से निकले तो जब कॉलेज में आए तो अयूब खान के राइट्स हो रहे थे, उसमें पार्टिसिपेट किया. भुट्टो आ गया था तो भुट्टो की बातें सुनी, तो पहला ब्रश हुआ विद सोशलिज्म. राइट. तो ख्याल आया कि यार ये अच्छी चीज होती है, इंटरेस्टिंग चीज होती है वगैरह. तो हम भुट्टो के फॉलोअर्स बन गए. उसके बाद क्या कहते हैं, आई वेंट अप टू LSE पढ़ने के लिए. वहां जाते साथ समझ आ गई कि जो यहाँ हमारे उस्तादों ने पढ़ाया था, खासतौर पर गवर्नमेंट कॉलेज में, बकवास थी. अच्छा. बिल्कुल बकवास थी. LSE में 2 हफ्ते में उसने सारा कोर्स ही खत्म कर दिया, जो हमें पूरे 2 साल लगे थे गवर्नमेंट कॉलेज में रोज लेक्चर सुन के करने में. यानी कि हमें इतनी फजूल चीजें पढ़ाई गई.
तो मुझे याद है किताबें डिक्टेट कर देते थे, टेक्स्ट बुक्स, ये वो फजूल किस्म की चीजें। तो मैं तो कहता ना, मैं शुरू यहाँ से करता हूँ, जवानी हमारी जाया कर दी, कुछ नहीं पढ़ाया गया। मैं कई दफा कहता हूँ, मैं चाहता हूँ अपने उस्तादों की कब्रें खोद के उनको दोबारा जलाऊं, ठीक है। दूसरी चीज ये, हाँ, हमारे उस्तादों में जो अच्छे थे वो क्रिश्चियन उस्ताद थे, जो थोड़े बहुत रह गए थे पार्टीशन के बाद, वो अच्छे थे बेचारे, बट वो भी काइंड ऑफ लो स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी थे। वो मैं पढ़ा सकते थे, बट दे कुडंट गिव अस गाइडेंस एंड लीडरशिप। तो वी वर नॉट अ फॉरवर्ड लुकिंग क्राउड, वी वर अ वेरी बैकवर्ड लुकिंग क्राउड। हाँ, हमारे अंदर भुट्टो की बात आ गई, जो रोटी कपड़ा मकान है, इक्विटी वगैरह, वो हम कर लेते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। तो LSE जब हम पहुंचे तो बांग्लादेश शुरू हो गया। वहां हमारा सबसे बड़ा कथारसिस आ गया कि जी बंगालियों को मारी जा रहे, और हम वहां पाकिस्तान का प्रचार कर रहे थे और बंगालियों के खिलाफ लड़ रहे थे, हिंदुओं के खिलाफ लड़ रहे थे, until we discovered 6-7 months later कि shit, we are in the wrong, not them, we are in the wrong। हमने बंगालियों के साथ ज्यादती की। और हैरानगी की बात है कि हमारे मुल्क में कोई फीलिंग ही नहीं थी बंगालियों के लिए। तो it's a bit strange। तो खैर LSE में पढ़ने का भी शौक नहीं था, LSE में पॉलिटिक्स का शौक था कि जी हम लेफ्टिस्ट हैं, सुर्खे बनेंगे, ये वो करेंगे, मार धार करेंगे, वो करते रहे। एंड यस, आई गॉट अ गुड डिग्री, बट आई वाज सरप्राइज्ड हाउ आई गॉट अ गुड डिग्री। वो पढ़ गया, ठीक है, खत्म हो गई। उसके बाद मैं जब गया अपने ट्यूटर के पास, मैंने कहा जी मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरी 2-1 आ गई, कैसे आ गई? तो मुझे कहता नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो कहता, मैंने कहा अच्छा फिर मैं क्या करूँ? कहता तू PhD शुरू कर ले, मैं तुझे पैसे देता हूँ। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैंने तो जितने PhD देखे हैं मेरे प्रोफेसर, वो तो बिल्कुल जाहिल थे। वो मुझे कहता है भाई एम आई लाइक दैट? मैंने कहा नहीं, बट मेरे उस्ताद बड़े जाहिल थे, आई डोंट वांट टू डू अ PhD। मैं छोड़ के आ गया, आई केम टू पाकिस्तान, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द लेफ्ट वगैरह। वो जब एपिसोड खत्म हुआ, 1-2 साल लग गए, तो फिर मैंने इकोनॉमिक्स सीरीज शुरू की। देन आई जॉइंड द PID। वहां जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू की तो मुझे पता चला मेरे भी जितने इकोनॉमिक्स से फारिग है। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी बात आपको बताऊं, मुझे बड़ा शौक था मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बनाने का। एक मीटिंग हुई मैक्रो इकोनॉमिक मॉडलिंग पे, जहां पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे होते, बड़े नाम थे उनके। मैंने एक बात की जो मुझे बाद में समझ आई। मैंने कहा भाई ये जो पाकिस्तान की सीरीज है, टाइम सीरीज, वो होगी 25 साल की उस वक्त। तो 25 साल की या 23 साल, पता नहीं कितने, शायद 2077 की बात है, 30 साल की। मैंने कहा इसमें स्ट्रक्चरल ब्रेक्स आ चुके, मुल्क टूट चुका है, हम इसको पहले स्प्लाइस करेंगे, फिर हम ये करेंगे। तो मुल्क टूट, बीच में भुट्टो की रेवोल्यूशन भी आ चुकी है, अब शायद मार्शल लॉ भी आ गया था। तो मैंने कहा ये स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है इनको हम कैसे डील करेंगे? सारे हंस पड़े, ओह ये क्या बात है, डमी लगा लो। फिर मैंने एक पेपर किया जिसमें मैंने कोशिश की ट्रेड साइकिल मेजर करने की। वो मैंने क्या किया, आई जस्ट टुक द फर्स्ट difference equation, I estimated difference equations, and from that difference equations I tried to take the eigenvalues and measure the क्या कहते हैं, Bayes cycle। I mean, it was a crude attempt। इनको मैंने दिया, सारे लोग हमारे, ये क्या बकवास है, छोड़ो ये कुछ नहीं। जब मैं शिकागो गया तो आई गिव इट टू आर्नल्ड ज़ेलर एंड रॉबर्ट लूकस। उन्होंने कहा इस पे PhD कर लो, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। और उन्होंने मुझे बताया कि क्रिस सिम्स ने वेक्टर ऑटो रिग्रेशन 1976 में इजाद कर दिया। हमारे लोगों को यहाँ नहीं पता था। जो मैंने स्ट्रक्चरल बेस की बात की थी, वो रॉबर्ट लूकस ने 1972 में पेपर किया था ऑन द लूकस क्रिटिक। हमारे लोगों को नहीं पता था। तो उधर से लेके आज तक जो मैं एक चीज देखता रहा हूं कि हम इकोनॉमिस्ट जरूर बने हुए हैं, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बट वी are not conversant with the latest developments in the literature, and that's a huge problem that I face. So before we jump on to Chicago, पाकिस्तान में लैंडस्केप क्या थी in terms of ideas? For example, महबूब हक साहब का हम लोग बहुत सुनते हैं, उनका जो ये 22 खानदान वाला जो उनका थीसिस था। I'm sure और भी उस टाइम ऑब्वियसली यहाँ पे सोशलिज्म और कैपिटलिज्म जो भी एक वो एटलीस्ट पब्लिक डिस्कोर्स में तो एक वो कन्वर्सेशन और डिबेट और जंग आप कह रहे हैं वो चल रही है। So what were the bigger ideas, the big figures, as a student of economics, thinking about the history of Pakistan? Who should we be thinking about? Who those figures are, and what were their key ideas that were being discussed? Pakistan में जो dominant economics man थे उस्ताद महबूब हक, there's no doubt about it. He was larger than life. मैं हमेशा कहता हूँ महबूब हक की ये बात थी कि टैक्सी ड्राइवर से जाकर पूछो, उसका नाम पता था। He was the only economist जिसको टैक्सी ड्राइवर भी जानते थे। अब हमें कोई नहीं जानता। महबूब हक का ये था, एंड महबूब हक हैड अ लार्जर देन लाइफ वैल्यू। बट असल बात ये थी कि पाकिस्तान में इकोनॉमिस्ट कोई नहीं थे।
उनका क्या, what was their main thesis like? महबूबुल्लाह From your lab. का 22 फैमिली था, दूसरा उसका thesis जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो महबूबुल्लाह के थीसिस से शुरू, पर उससे पहले थी, नॉट हिज एंटायरली. हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप केम हियर इन द 1950s. इनफैक्ट उस वक्त यूएसएड नहीं थी. हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप आया फोर्ड फाउंडेशन के पैसे पे. उन्होंने आके, और एक बंदा था उसका नाम था गस पापानेक, जिनकी आपने टॉक कराई थी शायद. गस पापानेक भी आया. उन्होंने आके एक प्लानिंग मॉडल शुरू किया. प्लानिंग कमीशन उन्होंने बनाई थी, पीआईडी उन्होंने बनाया था. उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो उनके जो पहले ग्रेजुएट्स थे वो महबूबुल्लाह थे, तो गए येल जाके पीएचडी. उनके साथ और बड़े बंदे गए थे, फॉर एग्जांपल अजीज अली मोहम्मद, फॉर एग्जांपल मोइन कुरैशी, मेनी पीपल वेंट देयर. और ये लोग सारे जो वापस इनमें से कुछ लोग आए, महबूबुल्लाह का आया, खालिद इकराम, मेनी पीपल केम हियर and they started planning commission was looking good in those days, but it was still a planning commission, and we were still taken over by the donor. हमारे जो बड़े लोग थे वो सारे गोरे थे. सिर्फ महबूबुल्लाह उनको चैलेंज करता था, बाकी लोग चैलेंज नहीं करते थे. महबूबुल्लाह ने जाके फिर पॉवर्टी कट वगैरह जब लिखे, he started challenging the गोरा. He started challenging the गोरा. फिर उसने बेसिक नीड की जो बात की, जो दुनिया में फैल गई, and quite frankly it became a big thing. I disagree with it, but it was the big thing. Poverty curtain was the big thing. Poverty measurement वहां से शुरू हो गई. तो महबूबुल्लाह had a very important contribution to ideas. But दूसरी तरफ भुट्टो जब आ गया, भुट्टो came with a socialist ethos. socialist ethos में भुट्टो ने आके जब काम किया, यहाँ पहली चीज उसने क्या की, उसने प्लानिंग कमीशन खत्म कर दी. But not from the point of view of free market. He did it from the point of view of socialism. He wanted socialism to rule the country, and socialism for him meant what Bhutto wants. हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है, we don't have a democratic culture. We don't have a democratic culture. We have a culture of the feudal lord. भुट्टो भी feudal lord है, ये लोग भी feudal lords हैं, सब feudal lords बन जाते हैं. They don't follow process. Planning commission भुट्टो को रोकती थी, that it had a process, good or bad, it had a process. Bhutto didn't want that. ठीक है, but then Bhutto didn't want any economist. Bhutto wanted, he brought in अपना क्या नाम है, Professor Mubashir Hassan साहब. Mubashir Hassan साहब was an engineer, but he had very fixed ideas in economics. So that was the time when all economists left Pakistan. And what were his ideas? His ideas, Professor की idea on the socialist, on the socialist thing, एक तो हम nationalize करेंगे. The nationalization में Bhutto went mad. पहला phase of nationalization was big industry, but the later phase of nationalization was small industries which were quite frankly unmanageable. ये घी मिल्स और आटे की चक्की वगैरह वो आप मैनेज नहीं कर सकते थे, तो उसने भुट्टो ने वो भी कर दी. भुट्टो ने फिर बैंकिंग सिस्टम को जो नेशनलाइज किया उसके बड़े असरात थे. बट नेशनलाइजेशन जा रहा था, एंड ही वांटेड टू बिल्ड अ सोशलिस्ट इकोनॉमी बट ऑन अ फ्यूडल प्लेटफॉर्म, बिकॉज ही वाज अ फ्यूडल एंड ही हैड अ फ्यूडल प्लेटफॉर्म. ही हैड नो कम्युनिस्ट पार्टी टू बैक हिम, नथिंग. So he had to rely on the bureaucracy. तो उसने ब्यूरोक्रेसी पर रिलाई किया, एंड ही डिडंट वांट लाइक प्रोफेशनल उसने निकाल दिया, बिकॉज प्रोफेशनल बोल देते हैं. तो दिस वाज द era ऑफ द ग्रेट ब्रेन ड्रेन टू वॉशिंगटन. सारे हमारे बंदे वॉशिंगटन चले गए. इनफैक्ट द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड बैंक वाज रियली लेड बाय पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट. इरिगेशन में हमारे बंदे गए, हमारे बंदे पावर में गए, हमारे इकोनॉमिस्ट गए, बरकी साहब, महबूब हक, अपना Shahid Hussain, so many other people went there, Khalid Ikram and many other people, and their staff that place. We were devoid of all economics. In fact, when I joined the PIED in 1976, there were very few economists left. Very few. Actually, in terms of thesis, this sounds rather quite a very dry kind of field. Like there's Mahbub al-Haq, so he has his thesis. He's obviously conversing with the global crowd, engaging with all the right people in that field. And then the other thing, the other side with Bhutto, you have Professor Mubashir Hassan, and then he comes in. But then, like, these are the only two frameworks we should be thinking about, which were being discussed or which were going around. Or other frameworks, other strands. For example, there was some. For example, एक चीज पहले याद रखें. When Pakistan came into being, we had no economists. The first economist in Pakistan, who became the chief economist, and we looked up to him, was M.L. Qureshi. Who also set up the PIED. M.L. Qureshi was teaching chemistry in Delhi. Right. But he did a master's in economics, and therefore he became. उसके बाद एक और खेप आ गई, अनवर इकबाल कुरैशी. फिर एक एसएम अख्तर साहब थे, who started writing textbooks for us. Okay. We wanted an indigenous textbook, much like cars. We also wanted an indigenous textbook. एसएम अख्तर ने लिखी, फिर एसएम अख्तर ने किताब लिखी, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान. फिर एसएम अख्तर ने किताब लिखी called Mathematical Economics. Now, I can tell you, all these books are pathetic. And we who grew up on those suffered a lot.
बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली द फाउंडेशन वाज वेरी बैड. ठीक है, अब ये हमारी रीत रही है कि हम कोशिश करते हैं एक सेकंड रेट चीज प्रोटेक्शन में बना के और बेचने की. अब जो डिबेट हो रही है, ये डिबेट वही थी, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म तो थी कोई. एवरीबॉडी इज अ सोशलिस्ट, एवरीबॉडी वांटेड टू बी अ सोशलिस्ट. हर किसी के दिल में गरीब की दर्द थी, बहुत दर्द थी गरीब की, हमारी बहुत दर्द है गरीब की. हर किसी की दर्द गरीब की थी. वो गरीब की दर्द हम डॉलर्स के बेच के पैसे बना देते हैं. दैट्स ऑल. ये इकोनॉमिक प्रोफेशन थ्रू आउट रही है. ट्रेजेडी है ये. So there wasn't. So it's probably right to say there wasn't any economist who was representing, say, free markets or capitalism at the time. It was mostly either human development, which is the Mahbubul Haq thesis, or something which is a bit more close to socialism, if not exactly socialism. And I fitted in those two. So how are these? So before you go to LSE, right? And then in LSE, you already say you were already kind of a socialist before you were there, and maybe you came back as a socialist as well. So there was there for good few years. So how were these debates? Or whatever the discourse was in Pakistan, which of these was influencing you? Sorry. There was the other side. Okay. The other side which was creeping up was Islam. Was the Islam. Okay. मतलब हमारे कॉलेज में हमारे सामने ये बंदे आ गए, इस्लामिक जमीयत तलबा फॉर एग्जाम्पल, Right. एंड उनके साथ जो ये थे ना इस्लामिक मूवमेंट, उसके बंदे आ गए. एंड वेरी सून वी स्टार्टेड सीइंग दीज गाइज कमिंग इन. The dress also changed. They started coming in looking like cap and beard, etc., etc. Okay. And they were very aggressive. They were very aggressive. And they had a framework in terms of Their framework was Islamic economic, whatever it meant. They were not clear, but they knew they were opposed to socialism. Okay. And they wanted, and they were 1977 की जो है वो मूवमेंट थी, MMM मूवमेंट, उसमें तो और भी तकड़े हो गए ना. And then after that, when he came back from LSE, many of my friends went and started teaching at Punjab University. I also taught for just one semester, but PID वगैरह में हमने देखा. यहाँ कायदे यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक्चुअली फिजिकली लोगों को यूनिवर्सिटी से निकाला. मतलब आई रिमेम्बर सम पीपल, फॉर एग्जांपल अकमल हुसैन की क्लास में आए और उसको थ्रेटन किया. मेरी लेफ्ट, इज़्ज़त मजीद लेफ्ट, मेनी पीपल लेफ्ट. यहाँ से कायदे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग थे, निगाह रिजान वगैरह, ऑल ऑफ देम वर फोर्स्ड आउट द यूनिवर्सिटी. व्हेन आई से फोर्स्ड, मतलब इंस्टेड ऑफ एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड दैट द लेफ्ट. ये तो पुश फैक्टर था. जो पुल फैक्टर था वो एक और आ गया कि उससे डोनर फंडिंग बहुत आ गई. तो डोनर फंडिंग जब आ गई तो एनजीओज बनने शुरू हो गए. तो फिर एनजीओज, वर्ल्ड बैंक ने आके एनजीओज बनाए, तो बहुत सारे हमारे लोग एनजीओज में चले गए. सो दे वर कोऑप्टेड इनटू द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय मींस एकेडमिया में. तो वो निकल के एनजीओज में चले गए और उन्होंने अपनी वो कंसल्टेंसी बना ली, ये वो वहां चले गए. बट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट सफर्ड ऑल टुगेदर, ऑल सोशल साइंसेस सफर्ड, बिकॉज यूनिवर्सिटी में रहे नहीं. और ये एनजीओज वगैरह जो थे, दे वर रनिंग ऑन फॉरेन एजेंडास, सो द प्रोफेशन एंड द सब्जेक्ट ऑफ द होल सफर्ड. So how was this influencing you as a student? Like which of the thoughts, like obviously you, socialism, you remained there. So what was resonating with you as a student? What was resonating from these debates to be so strongly aligned? First thing when I went to LSE, I don't know what happened, but my love for math returned. Okay. तो मैंने जाके very, I guess, arrogantly and stupidly, I chose the option of mathematical economics and econometrics. Okay. And even though my math was so poor, because I had not done math, I had not done calculus, I had not done anything. So I had to pick that up. Though I came back to Pakistan for the first summer, and I thought my math chicked out. So I went to get math tuition. And I took math tuition for 3 months. Once again I learned. तो मुझे फॉर्मूले रटवा दिए, मुझे सिखाया कुछ. तो पाकिस्तानी ट्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि दे डोंट टीच यू कॉन्सेप्ट्स. रटे लगवा के बस कर देते हैं. Then I went back to LSE and somehow I kept doing my econometrics and math, although I didn't do it very carefully, but I did it for the sake of form. और साथ साथ गोल ये बन गया कि मैंने पाकिस्तान जाके रेवोल्यूशन लानी है. But why? Why were you thinking कि रेवोल्यूशन लानी? Because वो गरीब का दर्द. अच्छा. रोमांटिक इल्यूजन. मैं कहता हूँ गरीब का दर्द एक रोमांटिक इल्यूजन है. There's nothing else. So that was the रोमांटिक इल्यूजन. वो रेजोनेट. वो हमारे जमाने में कैस्ट्रो की टी शर्ट पहना करते थे और उसकी चे गुवेरा की, तो हमने कहा हम भी चे गुवेरा बनेंगे. That's all. It was a naive romantic illusion. There was no. There wasn't any conceptual inclination. किताबें बड़ी पढ़ ली, समझ गए मार्क्सिज्म को वगैरह वगैरह, वो कर ले रहे. इवॉल्व हो गया, थोड़ी किताबें पढ़ ली, थोड़ा कुछ सीख लिया, but not necessarily
But I thought it's a romantic thing. It was not. Okay. जब जो इकोनॉमिक्स भी थी वो जो साइड पे पढ़ी इकोनॉमेटिक्स मैथमेटिक्स दैट्स आल्सो मैकेनिकल सो इन अ सेंस व्हेन आई केम बैक देयर वर टू मैकेनिकल स्ट्रीम्स गोइंग ऑन वन वाज आइडियलिज्म द अदर वाज अ बेस ऑफ नॉलेज बट नॉट ग्रेट बट अ बेस ऑफ नॉलेज जब मैं पाकिस्तान आया तो पहले कोशिश की रेवोल्यूशन लाने की फेल कर गए फिर रियलाइज किया कि यार ये तो बड़ी देर हो गई है देन आई हैड अ सन तो फिर सडनली वो गलती हुई तो मैंने कहा चलो नौकरी मिल गई पीआईडी में अच्छा और नौकरी तो मिलती कोई नहीं थी पंजाब यूनिवर्सिटी नौकरी पहले दी 120 रुपया महीना पढ़ाने के लिए अच्छा वो 1-2 महीने की फिर यहाँ पीआईडी में आ गया पीआईडी में बैठ गया तो पीआईडी में मुझे somehow I don't know what then I began to study economics seriously then I used to really seriously take economics and tried study seriously and I wrote a few papers that were well received then I got a scholarship to go to Chicago I got a admission to many places ठीक है I got admission to Penn I got admission to Oxford I got admission पर 7-8 जगह बर्कली एरिया में तो मैंने वो बीइंग कंफ्यूज्ड एंड बीइंग लेफ्ट स्टिल रेमिनेंट्स रह गए थे मैंने कहा मैंने शिकागो नहीं जाना ओके तो एक वहाँ बंदा आया कोई यूएसएड का वो आके तो मैं तो नाराज बैठा था मुझे स्कॉलरशिप नहीं दिया पहले साल उन्होंने मुझे नहीं दिया इन्होंने दिया बंदों को जो गए थे मैंने टोबस सिंसिनेटी वगैरह छोटी जगहों में और जब मैं गया फाइनेंस सेक्रेटरी के पास मैंने पूछा भाई ये क्या हुआ उसने कहा नहीं ये क्या बात हुई we don't know what's the difference between Chicago and Manitoba and Cincinnati. तो छोड़ दो इसको ठीक मैं छोड़ दिया तो एक अमेरिकन प्रोफेसर आया उसको किसी ने बताया कि भाई ये शिकागो से बंदा आया हुआ है उनके बाहर बैठा हो तो उसने मुझे बुलाया कहता तुम्हें शिकागो में एडमिशन मिल गई है तुम सोच रहे हो मैंने कहा एडमिशन तो मेरे से 2 साल की है तो उसने फिर सारों को गालियां दी मेरे बॉसेस को यार इसको शिकागो भेज तुम क्या कर रहे हो उसके अलावा एक और बंदा था डेनिस रिट्रे मेरा दोस्त जो शिकागो से ही था उसने मुझे तारे भेजी कि तू शिकागो आ वरना मैं तो यहाँ ये भी हो गया था बीच में मुझे स्कॉलरशिप मिल गया था कैनेडियन यूनिवर्सिटी से तो मैं जब टीके भी लगवा बैठा था टेस्ट भी करा बैठा था वीजा भी लगवा बैठा था मुझे डेनिस की तार आई यू मेकिंग द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ गो टू शिकागो तो देन आई चेंज माई माइंड एट द लास्ट मिनट वी वेंट टू शिकागो बट ये चीज नोबडी इन पाकिस्तान कुड एडवाइज मी रिमेंबर द बिग हेडलाइन इज we are so devoid of mentoring कोई एडवाइस नहीं कर सकता it only took some goras to advise me वरना ये तो मुझे कह रहे तुम चला जा थर्ड रेट यूनिवर्सिटी चले जा क्या फर्क पड़ता है और हमारी ईथोस की इस वक्त हमारे सब बच्चे थर्ड रेट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वो मुल्क लगा रहे हैं हमारा जो कल्चर है but still before you still not a Chicago boy but I went to Chicago but you are going to Chicago right? when I went to Chicago वो भी बड़ी मजा से when I went to Chicago there was an orientation Chicago is a totally no frills school मतलब वहाँ कुछ भी नहीं होता मैं गया पहली चीज तो आई वेंट एक एलिवेटर था 4th फ्लोर पे गया वहाँ 8 कमरे थे और मैंने जाके पूछा क्या हो रहा है उसने कहा भाई ओरिएंटेशन जनाब मैं चला गया नीचे वहाँ एक बंदा खड़ा था बड़ा लंबा सारा 6 फुट 2 इंच का थतला रहा था उसने कहा दिस इज शिकागो थतलाते हुए लुक टू द लेफ्ट ऑफ यू लुक टू द राइट ऑफ यू ओनली वन ऑफ यू इज गोइंग टू पास मेरा बेड़ा कर कोई मैंने आके अपने ट्यूटर को फोन किया LST मैंने कहा मैं वापस आ रहा हूँ उसने कहा क्या मतलब मैंने कहा मैं वापस आ रहा हूँ बिकॉज ये तो मुझे फेल कर देंगे उसने कहा नहीं तुझे तेरा वापसी का रास्ता मैंने बंद कर दिया तो मैं फिर वहां रह गया और फिर मैंने बड़ी मुश्किलों से इकोनॉमिक्स सीखी बिकॉज दिल में वही गरीबों का दर्द पड़ा हुआ था और शिकागो में जो अप्रोच थी वो आपके मुंह पे मारते थे चीज तुम्हें गरीबों का दर्द है पैसे बताओ कहाँ से आएंगे वो आपके मुंह पे आपको चैलेंज करते थे कि हार्ड इकोनॉमिक्स फेस करें ये सॉफ्ट इकोनॉमिक्स कोई नहीं कि इधर से भी कुछ हो जाता है इधर से भी कुछ हो जाता है नो वी हैड टू फेस द हार्ड इकोनॉमिक्स एंड दे वेरी टफ अबाउट इट were there some moments जब आप which you remember कि अच्छा so those are the things which started to force you to rethink your prior beliefs inclinations जो भी right so the thought process the making of the Nadimullah देखिए where does that very important चीज है for example देखिए ना you know confronting somebody like Gary Becker Gary Becker was a very hard, in-your-face economist. He would push the rationality and the neoclassical calculus to its limits. वो, for example, आपकी जो marriage decision है ना, उसको भी measure करता था कि यार शादी जो है is an investment good. शादी is not कि आपने love हो गया, गाने गा रहे और ना तो even a big contribution is to treat human capital or investment education as an investment. बच्चे, he said, I mean, imagine being confronted like this, a Marxist like me, you know, कि यार a child is an
Investment good. बच्चा is not mummy, daddy, puppy. So what did you think at that time? नहीं भाई Awkward नहीं हुआ कि यार ये क्या बात कर रहे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ और ये और वो, बट यू नो उन्होंने इतना रिगरस तरीके से डील किया. And it was such an exciting atmosphere, Chicago. Chicago was such an exciting atmosphere कि दिन रात आपके intellectual intrigue में लग जाते थे. I must say LSE was too, but LSE was nowhere compared to Chicago. Chicago में तो दिन रात कुछ ना कुछ होता रहता था. And the thing was, they always pushed. Lucas, for example, came along. Robert Lucas, 96 Nobel Prize है ना, वो आके हमें चैलेंज करता था कि जी ये इकोनॉमीज ग्रो कैसे करेंगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने उसने हमें एक क्लास दी, एक क्लास उसने की, मैं अंडर ग्रेजुएट क्लास कर रहा हूँ डेवलपमेंट में. दिस वाज अ काइंड ऑफ एक्साइटिंग एटमोस्फियर. हम वहाँ गए, उसने कहा निकल जाओ कमरे से, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आई डोंट वांट. मैंने कोई ये तो शिकागो की ट्रेडिशन है, यू कैन सिट इन एनी क्लास, नोबडी कैन से एनीथिंग. मैंने कहा उसने कहा मुझे कोई बात नहीं, 3 महीने दे दो, उसके बाद आई टॉक टू यू. उसके बाद मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये क्या है. उसने कहा दिस फील्ड ऑफ द मैथ इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, ये तो इनको कुछ आता ही नहीं है. मैंने कहा अच्छा. उसने 6 महीने के बाद एक पेपर लिखा, जो आपको पता है सबसे फेमस पेपर है डॉजर्स प्रोथ का. फिर मेरा क्लास वाला था पॉल रोमर. पॉल रोमर ने डॉजर्स प्रोथ की थ्योरी में जो काम किया, उसने पूरी थ्योरी अपेंड कर दी. हम सारी वो जो कनकेव सेट के साथ काम करते थे, कॉन्केव थ्योरी के साथ काम करते थे, उसने उसको ओवरटर्न कर दिया. अब ये हो रहा है. उधर से आ गया बस ब्रॉक, जो बड़ा अच्छा मैथमेटिकल इकोनॉमिस्ट था. वो मैथमेटिक्स करता था और साथ साथ जोक्स क्रैक करता था. उसने हमें सिखाई चीजें, फॉर एग्जांपल स्टोकेस्टिक कैलकुलस वगैरह, जिससे मतलब दिमाग चलता गया. फार्मा के पास गया, उसने वो फाइनेंस थ्योरी पढ़ाई. You know, the point was, it was just an intellectual orgasm. 5 year old. So this is also the time when there's this, it's a bit past that, but then still the time when there's this Keynesian classical debate is really almost coming to the end, I would say. No, it was raging, but it was really raging. It was raging. So, and that's a very different way of thinking about how the economy should be, what is the role of government. What were you thinking at the time? देखिए जी, उसका intellectual rigor इतना था. For example, rational expectation. You mentioned rational expectation. Rational expectation, Robert Lucas ने अभी पेपर 2 लिखे थे मेरे आने जाने से पहले. I mean, they were mind boggling. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेशन जो हमने केन्सियन से सीखी थी, जो हमने बचपन में सीखी थी, एक्सपेक्टेशंस क्या थी, जो पीछे हुआ है वो एक्सपेक्टेशन आ गई फिर पिछले साल. और हम जो सिंपल फिनोमेनन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडम स्मिथ की किताब से, थ्योरी से, मॉडल सेंटिमेंट से निकल रहा है, ये इवन उससे कि यार किसी भी सोशल साइंस में व्हाट इज द ह्यूमन बीइंग, जो बिहेवियर में भी आ गया कि ह्यूमन बीइंग बेसिकली यू एंड आई हैव अ ब्रेन. And our brain, the most important thing of the brain is it allows us to model. आपको ये जो हम बैठे हुए, ये जो सारी चीजें हमारे सामने हैं, ये हमने मॉडल करके बनाई हैं. ये जो कैमरे हैं, ये जो माइक्रोफोन है, ये हमने मॉडल करके बनाई है. पहले सोचा है, फिर हमने इसको बनाया, and it went through trial and error, and we evolved this camera into something that's fantastic. ठीक है ना? Which is a miracle. अगर आप सोचे आज से 200 साल पहले के बंदे आ जाए, वो हैरान हो जाइए क्या. तो we are a people who are capable of predicting and dealing with our future. और जो सारा थीसिस न्यू क्लासिक इकोनॉमिक्स का या सोशल साइंस का भी है, जो हमारे जो सॉफ्ट हार्टेड आइडियलिस्टिक सुरफे नहीं है, जो कहते हैं, जो मैं था, जो कहते हैं कि भाई मोए गरीबों के लिए दर्द. यार यू हैव टू बी वेरी क्लियर. मानते हैं गरीबों के दर्द सब में है, ये नहीं कि यार में नहीं है, बट पॉइंट इज यू हैव टू बी हार्ड एट इन थिंग्स. क्या होता है, सिंपल बात है. अगर मैंने कोई काम करना है, लेट्स से मैंने चाय की शॉप लगा दी, खोखा लगाना है, तो इवन खोखे लगाने के लिए मुझे बिजनेस प्लान चाहिए, और मुझे खोखा का डिजाइन चाहिए, मुझे खोखे के अंदर चाय बनाने के तरीके चाहिए, मुझे सब कुछ वो करना है. और मुझे पता है कि मैं अभी पैसे लगाऊंगा, मुझे 2 साल लगेंगे रिकवर करते करते. ठीक है ना? तो ये एक स्टैंडर्ड चीज है. तो हम सब के काम करेंगे, तो हम सब अपनी फ्यूचर प्लान करते हैं. बच्चा एजुकेशन करता है, फ्यूचर प्लान करता है. माँ बाप बेटे पैदा करते हैं तो फ्यूचर प्लान करते हैं, बिजनेस लगाते हैं तो फ्यूचर. तो जो रैशनल एक्सपेक्टेशन का थीसिस तो बड़ा कन्विंसिंग था कि जी लेट्स नॉट लुक बैकवर्ड्स फॉर एक्सपेक्टेशन, लेट्स लुक फॉरवर्ड फॉर एक्सपेक्टेशन. अब जब आप फॉरवर्ड देखते हैं, हाउ डू यू फॉर्म एक्सपेक्टेशन, तो वो एक्सपेक्टेशन आप कैसे फॉर्म करेंगे. रॉबर्ट लुकस का जो क्रिटिक आया वो बड़ा कन्विंसिंग था. व्हेन यू बिगिन टू अंडरस्टैंड इट, वेरी कन्विंसिंग कि जी अगर इफ यू आर फॉर्मिंग एक्सपेक्टेशंस ऑन द बेसिस ऑफ अ मॉडल, and I know what the model is, I'm going to use it too. So that's rational expectation. कि we will all share a model. अब उसके अंदर आप uncertainty डाल दें कि different models हैं, चले मान गए,
but then we are all going to predict the future. How are we going to predict the future? अब हुकूमत कई दफा कहती है कि मैं ये करूंगी, but फिर वहां गेम थ्योरी आ गई कि जो कुछ हुकूमत करेगी आई एम गोइंग टू गेम इट, आई एम नॉट गोइंग टू सिट देयर आइडल. अगर हुकूमत ने कहा भाई ये राइट साइड पे चलोगे तो मैं कोशिश करूंगा लेफ्ट साइड पे जाने की. अगर मुझे कोई एडवांटेज है तो मैं राइट पे चलूंगा. बट अगर हुकूमत कहेगी अच्छा भी तुम्हें मैं टैक्स ब्रेक दे रहा हूँ ताकि तुम इतना ग्रो, तुम जाके एक रिक्शा ले लो, तो मैं टैक्स ब्रेक लेके रिक्शा नहीं लूंगा, गाड़ी ले लूंगा. बिल्कुल मैं करूंगा ये चीज है. तो ये जब मैंने इसको एग्जामिन किया, ठीक करा, उसका मैथ देखा, उसका सब कुछ देखा, तो वेरी कन्विंसिंग. उसके साथ फिर आगे जाके व्हेन यू बिगिन टू यूज द लॉजिक, तो यू बिगिन टू से कि यार ये जो बात है, फॉर एग्जांपल एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि हाँ मुझे भी चाहिए गरीबों की मदद करनी, पर पैसे कहाँ से आएंगे? क्या मैं टैक्स करूंगा? तो अगर मैं टैक्स करूंगा तो जो लोग हैं जो टैक्स देंगे वो बेवकूफ तो नहीं है ना. दे आर आल्सो गोइंग टू ट्राई एंड थिंक ऑफ अ वे टू अवॉइड द टैक्स. और वो दुनिया में चीजें होती है तो गेम थ्योरी आ गई. सो वी हैव टू लर्न गेम थ्योरी. सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन बिल्डिंग अप अ होल नैरेटिव सोशल साइंस जॉब्स को बचाए. अब जो हमारे सुर्खे करते हैं ना यहाँ, जो बार बार करते हैं, द स्विफ्ट मॉडल जो वो एक चीज पर बात करते करते उधर भाग जाएंगे. तभी मैं एनालॉजी क्रिकेट की यूज करता हूँ कि भाई अपनी पोजीशन खेलो, आप बैट्समैन हो तो बैटिंग करो, बॉलर्स तो बॉलिंग करो. ये नहीं कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों मिक्स करते फिर गेम नहीं चलती. वो बचपन में करता होता था. ये बचपन में मुझे शौक था ना क्रिकेट खेलने का, तो मैं करता था कि मैं आउट नहीं हुआ भाई, मैंने रूल चेंज कर दिए. अब ये हर किसी को एडवांटेज नहीं होती यार. यू कांट चेंज द रूल्स ऑल द टाइम. अच्छा, बिग आइडियाज क्या पेन लाइक इट डजंट हैव टू बी बिग आइडियाज, लेकिन बिग आइडियाज यू रिमेंबर लाइक शिकागो में आप हैं, आप ये सारा कुछ होते हुए देख रहे हैं. व्हाट आर द बिग आइडियाज दैट आर शेपिंग योर माइंड कि गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, उसका रोल क्या होना चाहिए, इकोनॉमी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है. ऑब्वियसली सोशलिस्ट व्यू भी तो एक इट्स अ वे टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी राइट एट द एंड ऑफ इट इफ यू फ्रेम इट इन दैट सेंस. नहीं, इसको रादर देन अ सेंट्रल प्लानर ऑर्गेनाइजिंग दिस, इट शुड बी लेट्स से इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द मार्केट्स. लाइक व्हाट आर द बिग आइडियाज दैट यू आर फॉर्मिंग एट दिस टाइम? The big ideas that one is looking at, for example, is if you think about at the Chicago time, at the Chicago time, if you think about it, कि ये जो rational expectations was very important. ठीक है. दूसरी चीज understanding markets. We really don't understand markets. हम कह देते बस खोल दो, but that doesn't mean anything. Markets need organization. For example, if you look at the finance theory, you take Farmer's course or whatever. So finance में what is market? What is the market? Market is a set of instruments that you and I can deal in. तो finance ने अगर आप देखें, finance theory ने instruments बनाया throughout the अब वो क्या कहते हैं the history. एक तो पहले तो आ गया स्टॉक आ गया. Now stock is a very very important instrument जिसकी बेसिस पे हमें कॉन्कर किया गया. पहली चीज तो कंपनी बनाई इन्होंने. हमें तो कंपनी बनानी नहीं आती थी. ठीक है ना. हमें तो अभी तक हम खेती बाड़ी में लगे थे. इन्होंने जो कंपनी बनाई, जो 30-40 सौदागर लंदन के आके उन्होंने हमें कॉन्कर कर लिया. नॉट ओनली हमें, अफ्रीका को भी कॉन्कर कर लिया. वो उनकी शेयर होल्डिंग और कंपनी थी. फिर उसके बाद जाके उन्होंने जो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट्स बनाई, फिर उसके बाद आगे चले जाए ऑप्शन मार्केट्स बनाई. ये तो when you begin to see कि how they are able to fill out the economy by means of creative markets and trading instruments, understand that, तो फिर आपको समझ आती है. हमारे तो लोग बड़े crude है ना, they think only in terms of कि oh यार socialism या market. No, I think it's very childish understanding. दूसरी चीज जो है to dig down a bit deeper, that's very important. जो मार्केट के दो अभी तक आपने मेंशन किए, रैशनल एक्सपेक्टेशंस आपने एक्सप्लेन किए कि व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट. मार्केट्स की अब बात करें, दैट्स ऑब्वियसली क्रिटिकल. अब व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड इज ऑब्वियसली सो इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम, markets is what organizes or allocates resources. In a socialist system, there's some central planner. You don't have prices over there, but a central planner allocates resources. What is making you think that markets are better than the social planner? हाँ, ये हायक इंफॉर्मेशन थ्योरी आ जाती है या फिर बहुत right for example so this is what you are coming across in Oxford in Chicago. Holmstrom for example got us a course. ठीक है. Holmstrom का कोर्स था. Holmstrom is a very important one. Nobel Prize में Holmstrom ने जो कोर्स पढ़ाया मॉरल हैजर्ड और इस पे एजेंसी थियरी पे, तो यू बिगिन टू अंडरस्टैंड यार एजेंसी थियरी जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है. सोशलिज्म मार्क खाती है एजेंसी थियरी कि जी आप कमिश्नर को बैठा देंगे. अब कमिश्नर के अपने इंसेंटिव पे जो हमारे यहाँ है, फॉर एग्जांपल जो मैं बार बार चैलेंज करता हूँ, ब्यूरोक्रेट को आप बैठा देते, ब्यूरोक्रेट का इंसेंटिव है. अब ब्यूरोक्रेट हैज मॉरल हैजर्ड प्रॉब्लम, ही हैज एन इंसेंटिव प्रॉब्लम. तो वो इंसेंटिव प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है, जो हमारे लोग यहाँ से अच्छी तरह समझते नहीं है. एजेंसी प्रॉब्लम समझना बहुत जरूरी है. मार्केट फॉर लेमन समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीज. दीज थिंग्स आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इसके साथ साथ एक और जो चीज आ जाती है कि ये जो
अपना नॉर्थ की जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन नहीं है, इट्स द रूल्स ऑफ द गेम। जो मैं बार बार कहता हूँ कि जो हैरानगी की बात है, जहां हमने मार खाई, कोरे ने सारे गेम्स बनाई, हमने नहीं बनाई। हमने अगर गेम बनाई थोड़ी बहुत कुश्ती कबड्डी, हमने उसको कोडिफाई कभी नहीं किया, वो बस एक अमॉर्फस रूल बना रहा। गोरे की जो रूल बुक है वो बड़ी क्लियर है। क्रिकेट की रूल बुक आप देखें इतनी मोटी है, और क्रिकेट में हैंड साइंस भी है कि वो आउट हो गया या सिक्सर या वो वगैरह वो भी है, ठीक है। दे मेक अ कंप्लीट फुटबॉल। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख लें, एंड गेम, जो इंग्लिश गेम, फुटबॉल कैसे इवॉल्व किया। एंड द बुक ऑफ फुटबॉल, द बुक लिखा था किसी ने, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन द वर्ल्ड बिकॉज इट क्रिएटेड अ गेम। गेम्स की एडवांटेज क्या है? दे टीच यू हाउ टू कोलैबोरेट, दे टीच यू हाउ टू फॉलो रूल्स, and this was very clearly illustrated in neoclassical economics. Theory of teams देख लें, theory of agency देख लें, वगैरह वो सब चीजें। Once you begin to understand that, so you say कि यार, okay, socialism तो अपनी जगह है, it's an amorphous concept. How do you actually make it happen? ठीक है, because बीच में जो corruption की theory है, what is corruption? Corruption is an agency problem gone wrong, basically, ठीक है ना। तो आप वो देखें तो वो आप करें। अब शिकागो में जब मेरी थीसिस का वक्त आया तो वन थॉट दैट आई हैड, ये जो मैं आई कुड नेवर गेट इनटू पाकिस्तान। तभी मैं एडवाइस कर दूं तुम्हें भी, भूल जाओ पाकिस्तान को, अगर ग्रो करना है तो पाकिस्तान को भूल जाओ या कुछ नहीं होता। तो जो मुझे ख्याल आया वो सब हो रही थी, डेट क्राइसिस था जब मैं कर रहा था, ठीक डेट क्राइसिस आ गया। तो डेट क्राइसिस में मैंने जाके, नहीं उससे पहले एक चीज दो, हेकमैन की इकोनोमेट्रिक्स बड़ी मजेदार थी। हेकमैन की इकोनोमेट्रिक्स आल्सो चिलिंग, क्योंकि we learned that we were able to differentiate various kind of things through econometrics. For example, panel data सीखा, हैंसन भी आ गया, हैंसन की भी इकोनोमेट्रिक्स बड़ी मजेदार थी, ठीक है ना। कि ये जो इकोनोमेट्रिक्स था उसमें सैंपल सिलेक्शन बायस जो उससे जो हमें सिखाया वो, और क्या था, बड़े ऐसे मार्केट वो मैकेनिज्म्स where we could estimate various things, ठीक है ना। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी वो। अब ये सब चीजें कंबाइन करके now I was forming a world view. Which was different from the socialist. Because that's exactly what I want to understand. Socialist was a idealistic feeling कि मैंने गरीबों की मदद करनी है. But now you have micro. That's why I keep telling people macro से नीचे micro भी थोड़ा. And this was the big thing that Friedman and Lucas were leading. Lucas was looking for micro foundations of macro. Yes. Lucas बार-बार हमें लेके जाता था, कहता था ये macro है ना, ये इसके अंदर theory नहीं है, ऑफ द टॉप है। तो जो लूकस ने हमें इंटरजेनरेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ाई और जो लूकस ने हमें सारी थ्योरीज पढ़ाई, एंडोजेनस ग्रोथ और वगैरह वगैरह, उसमें ये था कि यार माइक्रो फाउंडेशंस क्या है। और मैं सोशलिज्म की माइक्रो फाउंडेशन देखता था, मुझे नहीं मिलती थी कि सोशलिज्म की तो है ना एक विश है, बट वो फिर उसमें ये आ जाता, मेरा दोस्त अकमल हुसैन वो कहता था नहीं तू गलत है, देयर विल बी अ न्यू मैन। मैंने कहा वो न्यू मैन कौन होगा? कि अगर न्यू मैन, जैसे मेरे इस्लामिक दोस्त भी हैं, यासर दमान, वो कहता है नहीं, जो इस्लामिक बंदा है वो कभी चोरी नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा। Either you have a building block, जहाँ you have a new man or a good Muslim, तो फिर तो कोई गड़बड़ी नहीं है ना, फिर तो ठीक है यार। बट मैं तो जो है got convinced in the neoclassical view that we are all fallen angels. We are not going to be angels. हमने कोई ना कोई बदमाशी जरूर करनी है। तो उसके अंदर फिर आ जाता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला लिटरेचर, दैट हाउ डू यू गेट दिस थिंग रिटन और agreed upon कि कैसे करेंगे। तो all that began to form neoclassical economics started making a lot of sense, and I said कि यार, even though it's not complete, but it's a very good way of looking at things. So from all sides, also from the Keynesian perspective, because Keynesian did not have rational expectations of micro foundations, so this is making more sense to you in that. Keynes is a part of it. Keynes is not so different. Keynes में देखिए 2-3 differences हैं। Keynes में एक rigidity है system में, liquidity trap है या wages है, बाकी rest of the system is still the same, ठीक है ना। बाकी ये कि मैक्रो केस में केन्स कहता है आपका लिक्विडिटी ट्रैप आ जाता है, दूसरा वो कहता है कि वेजेस जब टिकी होती हैं तो फिर आप फंस जाते हैं उस चीज में। केन में ये 2-3 चीजें हैं, बाकी एनिमल स्पिरिट्स आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो वो एनिमल स्पिरिट्स इज वेरी न्यूक्लासिकल यार। Expectations very neoclassical, except that वो multiple equilibrium आ जाते हैं ना दोस्त जैसे। multiple equilibrium. So how do you jump from one equilibrium to the other? So multiple equilibrium तो is okay. We deal with it all the time. Almost everything that we do in neoclassical economics has multiple equilibrium. Game theory में आ जाए तो multiple equilibrium अच्छा, so this is interesting. This all is very interesting and important for everyone to know. I think it's also very important for people listening to know what is it that forming
the views of the Nadimul Haq. What is making Nadimul Haq? So rather than just thinking about the statements that you often give. So the background and the intellectual thought process is very important for everyone to see and understand, and then based on that form your own view in terms of how you see this in that bigger picture. Now, obviously, as you keep saying, कि आप एक चीज पहले EIT में जब मैं आया ना वहाँ भी before Chicago EIT में मैं आया भी नहीं, यानी after my socialist phase, तो मैंने पहला पेपर जो करना था मैंने कहा जी मैंने तो पॉवर्टी इनइक्वालिटी मैंने जाकर पढ़ना शुरू कर दिया, डेटा लिया, मैंने सारे इनइक्वालिटी के एस्टिमेट्स निकाल दी, सन का भी तो फलाने का भी तो फलाने का भी, वो क्या होता है वो जो कर्व होता है सब निकाल के जीनी कर्व सब निकाल के बैठ गया। जब मैंने देखा यार ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा तो मेरे पास कुछ कहने को नहीं था, तो आई what do you mean? You know, some of these indicators don't go the same way. Some show there's greater inequality, some show less inequality, some. तो भाई मैंने कहा यार मैं क्या करूँ? So I gave that up. Then I did this pretty survey and I began to analyze Becker वाली rates of return वगैरह, ठीक है? तो वो मैंने किया जब तो which you did recently, ठीक है? Yes, I saw the paper from 70s. वो जब मैंने किया तो फिर मैंने कहा यार मेरा एक उस्ताद था यहाँ, दोस्त उस्ताद डेनिस रिट्रे, वो मुझे बार बार चैलेंज करता था और लेके जाता था उस तरफ, मैं उससे लड़ता था कि ये क्या बकवास है, ठीक है? तो प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन जिसमें मैंने देखा कि यार ये हो रहा है। जब मैं शिकागो में थीसिस के स्टेज पे आया तो ये जब हो रहा था डेट क्राइसिस, तो मैंने एक चीज कही, मैंने माइकल मूसा, लैटिन अमेरिका या पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान तो किसी गिनती में नहीं था, लैटिन अमेरिकन डेट क्राइसिस की बात है। तो मैंने उसको कहा माइकल मूसा को, मैंने कहा यार मैं इस पर काम कर रहे थे तो क्या चीज, मैंने कहा कैपिटल फ्लाइट। उसने कहा वो क्या होता है? अच्छा, तो आई गॉट काइंड ऑफ खैर आई गॉट ऑफ इट। फिर मैं जब फंड आया तो मैं रहा नहीं गया, मुझे कैपिटल फ्लाइट का शौक था, तो मैंने कैपिटल फ्लाइट का पेपर पे किया। I tried to build a model of capital flight based on the country expropriation. Before we come to the modeling part, so Chicago में all of this is happening and your thinking is taking shape. लेकिन as you keep saying कि Pakistan, you remain obsessed or whatever connected with Pakistan. So clearly you are coming. आप पाकिस्तान आए उस time period में, Chicago वाले time period में you stayed there. But you probably were you in interaction with, let's say, people back here? All this. So what was happening here in terms of, obviously, unfortunately, Bhutto got hanged. There's a martial law happening. So what's like? Where is Pakistan? What's happening in Pakistan? Islam. दुनिया में तो it's very interesting, right? 70. नहीं, पाकिस्तान में दो तीन चीज, सॉरी, एक तो पाकिस्तान में चीज थी कि एक तरफ तो इस्लामिक रेनेसांस थी, ज़िया का पीरियड था, हेट थी, इस्लामिक रेनेसांस थी। दूसरी तरफ जो अच्छी बात थी कि हमारी रेमिटेंसेस बहुत तकड़ी हो, सडनली द रेमिटेंसेस टुक ऑफ। Remittances took off, the country had a lot of liquidity and things were beginning to look good. और remittances की रीच पहुंच गई तो काफी सारे लोग अमीर तो नहीं, मतलब they kind of became better off in the sense के जो villages में चली गई वगैरह, तो lots of people getting power increase होगी, get better. There was a consumption kind of a mini boom, not a जो हो रहा था. People were making their houses, getting consumer goods वगैरह, and poverty indicators were going down. तो ये तो जरूर हो रहा था, but on the other hand ज़िया का जमाना था, and it went off. But then in 1978, all this came to an end, and we entered the fund program again. From before that, so because 78 is also when you finish your PhD. No, sorry. 88 is when you finish it. So it's kind of happening together. Yeah. But I finished my PhD 85, I think. 85. So in this period, जहाँ पे दुनिया में Chicago, like Cambrian class, it's like intellectually, it's probably very exciting period. But Pakistan is still sitting in irrespective of which side you take. Pakistan is still sitting in either socialism or Islam. हाँ, तो पाकिस्तान में what are the thoughts which are still present in Pakistan? वो जो global discussion है उसके लिए is that trickling down somewhere debate, not necessarily कि शिकागो बन जाए सारे. नहीं, पाकिस्तान में यहाँ जो थके हुए थोड़े बहुत प्रोफेसर्स थे, वो भी तक सोशलिज्म बैठे हुए थे. अच्छा. दूसरी साइड पे लोग इस्लाम पे बैठे हुए थे. So these are the two frameworks. तीसरी साइड पे एक और भी चीज थी इस्लाम के बिहाफ पे, because the Saudis had now got this oil boom आ गया था. Oil boom was financing Islamic economics. Okay. In fact, I wrote 2 papers in Islamic economics. Okay. And they were very well received, and there was a lot of money in Islamic economics. बहुत. तो यहाँ Islamic economics से बड़ी बातें हो रही थी और बड़े लोग कर रहे थे कोशिश Islamic. That's when Hudboy wrote his famous book on Islam and Science. अच्छा. And that's when वो अपना K.K. Aziz wrote a famous book on end of history. Murder of history. तो ये क्या कहते हैं इसका उस तक ये माहौल था यहाँ.
But economics was nowhere. So there wasn't, okay. So it was really socialism versus some kind of Islamic economics kind of thing clashing with each other. So then you go to IMF. Why IMF? Jar, I wasn't going to the IMF. Acha. I was going to come back. I had my bags packed and everything to come back. तो मुझे एक फोन कॉल आ गई. Picked up the phone, तो बंदे ने कहा यार तुम IMF आ जाओ. मैंने कहा यार मैं कैसे आऊंगा, मैं तो वापस जा रहा हूँ वगैरह. उसने कहा तुम इंटरव्यू तो करो आके. तो वापस क्यों आ रहे थे आप? What for? PID? What did you have in mind? बिल्कुल नहीं, वापस इसलिए आ रहा था कि बस कुछ पता ही नहीं. आ जाएंगे PID वापस और And then देखते हैं क्या होता है kind of. और एक बॉन्ड भी था उस सब मेरा. मैंने कहा मैं वापस आ जाता हूँ. कोई इतना खास नहीं था. और दुनिया बंद थी उस वक्त. ये नहीं था कि we could get jobs elsewhere. वो हमारा नहीं. वो not like now you have this advantage to get jobs there. अब उस वक्त इतना नहीं अच्छा था. तो मैं वापस आ रहा था. तो जनाब क्या हुआ? Carry on with the IMF. इसने IMF ने मुझे फोन किया. उन्होंने कहा कि तुम इस तरह करो वॉशिंगटन तो आ जाओ. मैंने वॉशिंगटन देखा नहीं था. उन्होंने कहा तुम इस तरह करो जहाज का टिकट कटाओ आ जाओ और फर्स्ट क्लास कटाना. फर्स्ट क्लास ट्रैवल करने में यार मुझे मैंने कहा चलो कटा लेते हैं. चला गया. उन्होंने मैसेज दिए इंटरव्यू हुआ. उसने कहा भाई तुम आ जाओ. तो मैंने कहा यार मुझे तंग करेंगे पीछे. उन्होंने कहा नहीं मैं बात कर लूंगा. बात किया पीछे तंग किया लड़ाई हुई ये वो. चला गया है मैं. तो मैं तो गया था 2-3 साल के लिए. मैंने 2-3 साल के लिए पुरानी गाड़ी भी ली, पुराना घर भी लिया, सब कुछ 220 वोल्ट अप्लायंसेस भी ली. वॉशिंगटन में. हाँ मैंने कहा 2-3 साल के बाद वापस आऊंगा. फिर यहाँ जब भी आने की कोशिश बड़ी कोशिश की आने की, मौका ही कोई नहीं मिलता था. तो फिर मैं नहीं आया. और एक दफा आया था बीच में छुट्टी साल की. But PID में भी तो आप you were weekly paid in 2005 sometime, right? Yeah, 2005, 6-7. And वो मैं I came on leave, which was a stupid mistake. मैंने बड़ी गलती की. पाकिस्तान को मैं जो भूला नहीं is the biggest mistake of my life. I should have given it up. चलिए वो तो I think it's पाकिस्तान का benefit ही हुआ है. अच्छा going back. So आप IMF में जाते हैं. So then it's very interesting क्योंकि IMF में आप जाते हैं and given what you were telling me before, IMF में you work on these very exciting new frameworks जिसमें rational expectations भी है, dynamism भी है. So these are very now mainstream models which were new at the time. And you are very excited about these, right? I had the advantage of going to the research department. तो research department मैंने 7-8 साल काटे. तो वहाँ है जो एडवांटेज ऑफ मीटिंग सम ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड. मतलब बड़े अच्छे लोग थे. फॉर एग्जांपल मेरी डिवीजन नहीं काम करती थी. कार्मेन राइनहार्ट जो बड़ी फेमस हो गई है. पीटर मॉन्टिल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था. मोहसिन खान अनदर वेरी फाइन इकोनॉमिस्ट. फिर मेनी इकोनॉमिस्ट जो कि अब बहुत कार्लोस वेग जो अब यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में प्रोफेसर हैं. एंड सो मेनी अदर्स वेरी गुड पीपल. तो उनके साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा था. पर दूसरी चीज थी कि I always had my own eccentricities. For example, Capital Flight was an eccentricity. But Capital Flight की जो अच्छी बात हुई वो ये हुई कि it was the first paper in Capital Flight. तो उसका बड़ा फायदा हो गया. बड़ी उस समय ना. Capital Flight तो really Lucas ने paper 91 का लिखा तो he kind of started the literature. But you were thinking about it before. Capital Flight Lucas नहीं लिखा था. जो कौन सा? The 91 paper where he talks about why there's not enough capital flowing to India. नहीं मेरा पेपर तो उससे पहले 83. So you were writing 84. हाँ. So that's very 84. कब तो इतना discussion. तो वो Capital Flight पे लिखा और मेरा point यही था कि यार we are talking about capital going one way. What about the other way? और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. लूकस के पास मूसा के पास यही गया था. मैंने कहा देखो मुझे नजर आ रहा है BC3 नया आया हुआ था. मैं कहा मैं लंदन जाता हूँ. अदर पाकिस्तान रियल एस्टेट लेके बैठा हुआ है. मुझे नजर आ रहा है यार मेरे साथ बैठे हुए लोग वहाँ इतनी restriction है capital पे, but yet they've got Dubai खुली है. Dubai भी. What was the argument you're building with this paper? Argument that I built was that there is an expropriation risk that people face. Okay. So it's a portfolio decision. Sure. You have an expropriation risk कि आपका ये tax कर देंगे, capital ले जाएंगे, ये कर देंगे. तो then you have a portfolio decision to face. कि ये probability है ये ले जाएंगे. तो इस probability को आप dodge करने के लिए international market में आप पैसे फेंक देंगे. Right. And you try and maximize your return over your lifetime. तो ये simple model है. So it's kind of motivated through institutional frictions or. दूसरी चीज उसको फिर हमने measure किया. हमने जो balance payments literature लेके data लेके उस data से हमने निकाला कि जी कितने जो measured error denomination हमारा जो चीजें जो possibly escape हो जाती. तो we calculated capital flight for the world. मतलब different countries. पाकिस्तान का भी सबका हमने कैलकुलेट किया कि जी क्या पॉसिबिलिटी एस्टिमेट्स है. तो आज तक चल रहा है. उसके बाद वो छोड़ दिया. तो ये सबसे बड़ी गलती है. मुझे बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट है. उसने कहा तुम बहुत बेवकूफ हो. तुम एक समीर को करते हो छोड़ देते हो. एंड ही वाज राइट.
मैं भूल रहा हूँ उस बंदे का नाम, बहुत बड़ा आदमी है। फिर वो किया तो मैं उसको छोड़ दिया। You kept working on models for some time, right? वो फिर मैक्रो model you built another Macro model model पे आ गया। macro models. तो वो किया, वो अभी आपने यू मेंशन सार्जेंट वॉलेस था, उससे सार्जेंट का एक मॉडल था मैक्रो इकोनॉमिक, और रॉबर्ट लूस का क्रिटिक था कि जी अगर आप एक मॉडल एस्टिमेट करें, उस जमाने में बहुत बड़े बड़े मॉडल एस्टिमेट, बिल्कुल, जो कि इंडियन ट्रेडिशन में आ रहे थे। बिल्कुल, जो उसने क्लाइंट ने किए थे। तो लूकस ने कहा कि भाई ये जो आप पैरामीटर एस्टिमेट करती है, स्टेट बैंक अगर यूज करता है या गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए यूज करती है, तो देन व्हाई वुडंट द प्राइवेट सेक्टर यूज इट? प्राइवेट सेक्टर के पास बड़े अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, गोल्डमैन सैक्स वगैरह के पास बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, सिटी बैंक के पास बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। दे टेक दैट मॉडल एंड यूज इट। इफ यू मेक अ पॉलिसी बेस्ड ऑन दैट मॉडल, then these guys will take the model and use it too. Yes. So therefore, the moment they begin to use the model, what you do is, because you've estimated the model under certain assumptions, तो जब ये यूज करेंगे तो वो assumptions challenge हो जाएंगी and the parameters will move. So if the parameters move, the model is useless. बिल्कुल। तो we built structural models for Pakistan and for developing countries in various places. वो ये था कि these models will work only on structural parameters, जो नहीं चेंज करेंगे। जो माइक्रो फाउंडेशन पे। दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो फाउंडेशन और नो माइक्रो फाउंडेशन। वो उसमें हमने मॉडल्स एस्टिमेट किए, फॉर एग्जांपल डीप पैरामीटर्स हमने कोशिश की आइडेंटिफाई करने की। उन डीप पैरामीटर्स को हमने यूज किया, तो उसके अंदर अब 2-3 प्रॉब्लम आ गया कि जी इसको हम कैसे करेंगे, मॉडल कैसे करेंगे, एस्टिमेट कैसे करेंगे। दोनों चीज, एक तो पहली चीज तो उसको मॉडल करना, दूसरी चीज एस्टिमेट करना। मॉडलिंग में 2-3 कंसेप्चुअल प्रॉब्लम जो लोग समझते नहीं है। जहाँ मैंने कोशिश की मॉडल बिल्ड करने की, कई लोग कहते हैं मॉडल है बट दे डोंट अंडरस्टैंड फंडामेंटल प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, पहली चीज तो ऑल मॉडल हैव टू परफॉर्म इन ISLM का सप्लाई कर्व वगैरह, चलो मान के, तो यू हैव टू टेस्ट फॉर दैट कि वो क्या होता है, कंसिस्टेंसी उसकी। दूसरी चीज, यू हैव टू वरी अबाउट द डायनामिक्स। डायनामिक्स भी स्टेबल होनी चाहिए, अगर स्टेबल नहीं है तो हमारे गए, फट जाएगा मॉडल। तो यू हैव टू वरी अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉडल। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, यू वर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी पहले, कि मॉनेटरी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इफ मॉनेटरी पॉलिसी इज नॉट इंडिपेंडेंट, तो फिर आप तो यू आर फॉलोइंग द US डॉलर या नेशनल मार्केट। तो मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करने के लिए यू हैव टू हैव a degree of capital mobility or a degree of capital closure. Most models end up being closed economy. So I didn't want a closed economy model, so we tried to estimate an open economy model. Right. But then the open economy model means that monetary policy is gone. So if you have to estimate an open economy model, small open economy model, then you have to Mandel Fleming ko lene. So you have to worry about the capital flight restrictions या capital mobility restrictions क्या है। तो उसके लिए पहले हमने एक पेपर एस्टिमेट किया